जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ काशिफ शहज़ाद and you're watching IELTS with Kashif. We have talked a lot about task 1, process, life cycle and map, and we have also talked about bar graph. So this is a second video clip I'm making about a bar graph. There are different types of bar graphs. There can be one bar graph with the table, there can be two bar graphs, or there can be three bar graphs. So you don't need to worry about like how many pictures will come. जितनी पिक्चर्स ज़्यादा होंगी आप उतना ईजिली उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे. जितनी पिक्चर्स कम होंगी आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है वर्ड्स बनाना 150 वर्ड्स. Previously we have talked about one bar graph in which you explain the trends, and I have mentioned how you can explain the three trends or three categories in a different method, right? Is दफ़ा we have got two pictures of bar graphs and we will discuss how we can discuss about this body बुनियादी structure. You know that paraphrasing, overview and body paragraph. So these are the basic structure. Today we have the chart below give information about USA marriages and divorce rates between 1970 and 2000 and the marital status of adult American in 2 of the years. We have two pictures. Pictures 1, number of marriages and divorces in USA from 1970 to 2000, and the ratio is given in millions, whereas we have got second picture in which it has been told that marital status of adult Americans in 1970 and 2000, not from 1970 to 2000. It is in 1970 and 2000. It's a data about only 2 years, not 30 years. Make sure you keep an eye on the statement and you spend 3 to 4, 5 minutes in analyzing how you can arrange the conversation, how you can sketch the whole body paragraph. आपको बहुत सोचना है, आपको देखना है कि मैंने इसको कैसे लेके चलना है. ठीक है. पैराफ्रेसिंग और ओवरव्यू के बारे में दोबारा मैं आपको बता देता हूं कि दो पिक्चर्स हैं तो ओवरव्यू दो होंगे. होगा एक ही पैराग्राफ ओवरव्यू का लेकिन दो ओवरव्यू होंगे. पैराफ्रेसिंग उसी तरह दोनों स्टेटमेंट्स रीफ्रेस करेंगे, फिर उसके बाद हम उसका ओवरव्यू करेंगे, फिर उसके बाद बॉडी पैराग्राफ पे जाएंगे. स्टार्ट करते हैं जी. हम आपके सामने 2-3 आंसर मैं रखता हूँ, मुख्तलिफ जगह से उठाए हैं, जो मुझे बेहतर लगते हैं, आप इजीली समझ जाएंगे, मैं उसको रखता हूँ. बड़ी को हाई फाई इंग्लिश यूज़ नहीं करते, नॉर्मल 6 to 7 बैंड के दरमियान में. ये आप अगर ये कर लें तो बहुत अच्छी चीज़ है. इम्प्रूव करने को तो फिर कहीं पे भी किया जा सकता है. अब पैराफ्रेसिंग की बात करते हैं. पहली पैराफ्रेसिंग है द गिवन बार चार्ट्स इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ मैरिजेस एंड डाइवोर्सेस इन यूएसए एज वेल एज द मैरिटल स्टेटस ऑफ एडल्ट अमेरिकन ओवर द पीरियड ऑफ 1970 to 2000. ठीक हो गया. ये एक पैराफ्रेसिंग है. उसके साथ ओवरव्यू लिखा हुआ जी. ओवरऑल नंबर ऑफ मैरिजेस डिक्रीज्ड अक्रॉस 3 decades while the number of divorces couples fluctuated. However, the marital status of adult American was divided into 4 categories. टाइप है. ठीक है. ये एक हो गया. अब दूसरा हम डिस्कस करते हैं. उसमें हमें कहता है जी द फर्स्ट चार्ट इलस्ट्रेट्स, डेमोन्स्ट्रेट्स, डिपिक्ट्स, shows the information about change in the number of marriages and divorces in US over a 30-year period from 1970 to 2000. The second chart compares the proportion of American adults different marital statuses in 2 years, 1970 and 2000. इसका ओवरव्यू भी देख लेते हैं कि overall there was a clear downward trend of people getting married in the US. Although a majority of adults Americans were married in both recorded years, there was a quite higher percentage of people staying single in 2000. ये ओवरव्यू दोनों टास्क का उसने कर दिया है. ठीक है. थर्ड पे आ जाते हैं. अच्छा, द गिवन बार चार्ट, बल्कि हाँ ये द बार चार्ट, यहाँ पे ओवरव्यू और पैराफ्रेसिंग इकट्ठी कर दे. द बार चार्ट इलस्ट्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट मैरिड एंड डाइवोर्स रेट्स
as well as the marital status of the adult Americans in 1970 and 2000. Over these 3 decades, there was a noticeable downward trend in the number of marriages. Additionally, the most common marital status in both years was being married. एक कान को आप कई साइड से पकड़ सकते हैं. इट्स योर स्टाइल ऑफ राइटिंग कि आप किस तरह चीज़ों को रिफ्रेज करते हैं. ठीक है. दिस वॉज ऑल अबाउट पैराफ्रेसिंग एंड ओवरव्यू. नाउ वील कम टू द बॉडी पैराग्राफ. अब चूंकि 2 पिक्चर्स हैं, दोनों पिक्चर्स की बॉडी पैराग्राफ हैं, जरूरी नहीं कि आपका एक ग्राफ दूसरे से रिलेटेड हो. ठीक है. इसलिए कंपैरिजन बाज दफा हो जाता है, बाज दफा जरूरी नहीं होता. दोनों ग्राफ इंडिपेंडेंटली एक्सप्लेन करने होते हैं, ये याद रखना पॉइंट. ठीक है. अब फर्स्ट पैराग्राफ में आ जाए. आपको ये पता चल गया कि ओवरऑल the rate of marriages were higher than the divorces throughout the period. However, the rate of marriages experienced a little decline in the last 2 decades. ठीक है. Whereas there was a little hike in the divorces in 1980s, but overall it remained under 1 million, या it remained stable. ये overview. अब हम details की तरफ जाते हैं जी. अब बताएंगे जी. अब details में पहले हम पिक्चर्स को एक्सप्लेन करेंगे, पहली बॉडी पैराग्राफ में, और दूसरे बॉडी पैराग्राफ में दूसरी पिक्चर को एक्सप्लेन करेंगे. मैं आपके सामने दोनों के एक आंसर एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी मैं साथ में अटैच कर दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है उससे ना. ऑन द वन हैंड, द काउंट ऑफ marital unions remained stable in the USA between 1970 and 1980 at 2.5 million. Married rate 2.5 million पे stable रहता है. Then it slightly decreased to 2 million in 2000, while the count of divorces rose from 1 million 1970 to 1.4 million in 1980. अच्छा, ये थोड़ा सा ना उसने इकट्ठा करके लिखा हुआ. मैं आई वुड प्रेफर कि आप इसको अलहदा से लिखें. अलहदा वाला आंसर क्या है जी? बल्कि ज्यादातर अगर स्टैंडर्ड आंसर में देखा जाए ना तो वो इकट्ठा ही एक्सप्लेन करते हैं. ये जो आंसर्स 2-3 मैंने खोले हैं उनमें इकट्ठा एक्सप्लेन किया है. आप इसको इजी तरीका मैं आपको बताता हूं. देखिए मेरी बात सुने. आप कहें कि बॉडी पैराग्राफ में द रेशो ऑफ मैरिड पीपल वर ऑब्वियसली हायर as compared to the divorces. This rate was 2.5 billion in 1970 and this figure remained the same till the next decade. But from the next 2 decades, in 1990 and 2000, it experienced a little decline and reached to 2 million. That's it. ठीक है. Whereas if we talk about the divorces, it was 1 million initially. It experienced a little hike in 1980, but again in 1990 and 2000, it remained under 1 million. That's it. आप ये भी कर सकते हैं. ये सेपरेट थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन. आगे चले जाएं. दूसरी जी, ऑन दी अदर हैंड द मेजॉरिटी ऑफ. अच्छा, यहाँ पे जो ये ग्राफ दिया गया है ना 2 years का, अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपको उसी तरतीब से आप चलें जिस तरह ऊपर वाले ग्राफ में या पिछले ग्राफ में हम लोग चल रहे थे कि जी नेवर मैरिड इतने थे, मैरिड इतने थे, विडोड इतने थे. थोड़ा सा आपको स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है हमें. लेट्स सी उसने क्या लिखा हुआ है, फिर मैं आपको बताता हूँ उसको सिंपल करके. On the other hand, the majority of American adults were married in 1970 and 2000 with a proportion of 70% reduced by 10 unit in 2000. Moreover, the percentage of never married went up from 15% in 1970 to 20%. ठीक है. Widowed and divorced citizen always remained under 10%. बिल्कुल ठीक है. इसी तरह लिखना था कि इसमें आपने जिस तरह हमने ऊपर उसको ईयर बाय ईयर या डेकेड बाय डेकेड एक्सप्लेन किया, यहां पे नहीं आपने करना. यहां पे ट्रेंड थोड़ा डिफरेंट है. आप कहें कि जी द नंबर ऑफ मैरिड पीपल वर 70, the percentage of married people was 70 in 1970 and it declined to 60 in 2000. ये हो गया. नेक्स्ट पॉइंट सेकंड बॉडी पैराग्राफ में हम लिखें, द पीपल हु वर नेवर मैरिड दे वर लेस इन 1970, इट इंक्रीज टू 20% in 2000. Whereas widowed and divorced people were always under 10% either in 1970 or in 2000. ये आप इसको एक्सप्लेन कर दें. वेरी सिंपल, बहुत इजी. इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, इसको बहुत ज्यादा ड्रैग नहीं करना, आपके वर्ड्स पूरे हो जाएंगे. दिस इज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, टास्क 1. आपने वही एक्सप्लेन करना है जो लिखा हुआ है, अपने पास से कुछ नहीं बोलना.
आइल्स विद काशिफ पे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बार ग्राफ तो हमने डिस्कस कर लिया, अब हम लोग लाइन ग्राफ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।